بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، دوست، احباب، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، سب دیکھنے سننے والے کو میرا بہت بہت سلام۔ یہ مضمون جو ہم نے شروع کیا تھا توحید کا، اسرار معرفت کا، یہ اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے جس کا تعلق عید میلاد النبی کے ساتھ ہے۔ جو لوگ تسلسل سے میرا بیان سننے والے ہیں ان کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ ذات باری تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تجلی ظہور کی فرمائی، اس کی تجلی کو روح کہتے ہیں، اور عالم ظہور کا یہ پہلا مرتبہ ہے، اور مرتبوں میں گنتی کے اعتبار سے یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ مرتبہ احدیت ہے، دوسرا وحدت اور حقیقت محمدیہ کا ہے، تیسرا مرتبہ وحدیت یعنی حقیقت انسانیہ کا مرتبہ ہے، اور پھر یہ چوتھا مرتبہ ہے روح کا۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، تجھ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، اے محبوب ان کو فرما دے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ پچھلے حصہ میں ہم نے یہ بات کو خوب سمجھ ہی لیا تھا کہ یہ امر کس طرح ہے، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک روح کو عالم امر بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ امر ربی اور امر کن سے ظہور میں آیا ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کن کا حکم ہوا اور ہو گیا، کس پر حکم ہوا یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ یہ حکم کسی غیر کو نہیں فرمایا، اپنے آپ کو ہی فرمایا، ہو جا، بس ہو گیا۔ ذات باری تعالیٰ جب کسی شے کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں بس ہو جاتی ہے۔ جن کو کن کہا وہ غیر نہیں تھی، باہر نہیں تھی، وہ سب کچھ ذات میں ہی موجود تھا جو ظہور میں آنے والا تھا۔ جب حکم ہوا تو وہ صورتیں اور تعینات جو ذات میں ہی موجود تھے ظہور میں آ گئے۔ ہر صورت جو ظہور میں آ چکی ہے، آ رہی ہے اور آئندہ آئے گی، سب ذات میں موجود تھی، بس حکم ہوا وہ ظہور میں آ گئی۔ جو صورت سب سے پہلے ظہور میں آئی اس کو روح کہتے ہیں، اسی کو عالم امر بھی کہتے ہیں۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ جسے روح کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ روح کی تعریف یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی، حضرت امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا روم، تمام کی یہ رائے ہے کہ روح بے صورت ہے، بے حد ہے، لامتناہی ہے، ٹوٹنے اور جڑنے سے پاک ہے، تقسیم سے پاک ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، تقسیم سے پاک ہے، مجر و بسیط ہے، مادے سے پاک ہے۔ روح بے حد ہے، اور بے حد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذرا بھی اس کائنات میں ایسا نہیں جو روح سے باہر ہو۔ ہر شے روح کے اندر ہے، روح بے صورت ہے۔ معلوم ہوا کہ روح بے صورت بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، اور بے حد لامتناہی بھی ہے، اور کائنات کا ایک ذرا بھی ایسا نہیں جو روح سے خالی ہو۔ جیسے پانی ہی سے برف موجود ہے، از خود موجود نہیں، برف عرض ہے، پانی جوہر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ برف کو پانی سے باہر نکال لیا جائے، تو اس کو یوں سمجھیے کہ پانی جوہر ہے اور برف عرض ہے۔ اسی طرح کائنات عرض ہے اور روح جوہر ہے،
तमाम कायनात रूह पर कायम है। हर एक चीज रूह से कायम है और रूह जौहर है। अर्ज इसे कहते हैं जो किसी सहारे से कायम हो। जौहर वो होता है जो बगैर सहारे के कायम हो। कायनात रूह के सहारे कायम है और रूह हर चीज में ऐसे समाई है जैसे पानी बर्फ में समाया हुआ है। यानी बर्फ का कोई हिस्सा पानी से खाली नहीं। जो खाली हो वो कायम ही नहीं रह सकता। जब कोई शय रूह के बगैर नहीं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मौला ताला ने मेरे नूर को पैदा किया, जिसे नूर मुस्तफ़ा कहा जाता है। इसी को दूसरे लफ्जों में रूह कहा जाता है और इसी का नाम अकल है। अवलु मा खालकल्लाहुल अकल, और रूह का ही एक नाम है अवला मा खालकल्लाहुल कलम। चाहे कोई नूर कहे, रूह कहे, अकल कहे या कलम कहे, तमाम से मुराद एक ही नूर पाक है। तो फिर साफ जाहिर है कि हजूर का एक मर्तबा सूरत का भी है और एक मर्तबा बेसूरती का भी है। जब सूरत में आए तो आमना के घर पैदा हुए और जब बेसूरत थे तो रूह आजम थे, अकल कुल थे और कलमुल आला का मर्तबा रखते थे। बेसूरती का मर्तबा रखते थे। जो वलायत की मंजिल में औलिया कराम आए हैं, तो जब वो इस मंजिल में आए तो शक हुआ कि हम ज़ात के वसाल के मर्तबा में आ गए हैं, क्योंकि रूह ज़िल्ले इलाही है और ज़ात के मुशाबा है। चुनाचे बरसों रूह की इबादत करते रहे और आखिर जब राज खुला तो मालूम हुआ अभी तक रूह के मर्तबा में है। ज़ाते बारी का मर्तबा आगे है। ज़ाते बारी ताला भी बेसूरत और बेहद है और रूह भी बेसूरत और बेहद है। इमाम गजाली ने भी कहा है कि रूह बेसूरत है, बेरंग है। जब मैंने सुना और आपने भी सुना तो शक हुआ कि रूह बेसूरत और बेहद और फिर मखलूक भी है। दोनों बेहद मौजूद हैं, ये कैसे हो सकता है? दो बेहद कैसे मौजूद हैं? दो मानने वालों को शुबा हो सकता है, हम तो एक मानते हैं। मियाँ दो नहीं हैं, दो बेहद रह नहीं सकते। ये ऐसे ही है जैसे हवा से पानी ज़हूर में आ गया, हवा पानी में समाई हुई है। दोनों एक दूसरे का गैर नहीं है। ज़ात और रूह भी ऐसे ही मौजूद है। ज़ात रूह में समाई हुई है जैसे स्याही हर्फों में समाई हुई है। साइंसदानों ने बताया है कि फ़ज़ा में हर जगह और हर वक्त तरी मौजूद है। चलने फिरने से हवा टुकड़े टुकड़े नहीं होती। पानी की मौजूदगी से कपड़े गीले नहीं होते। पानी फ़ज़ा में इसका ऐन होकर समाया हुआ है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसी तरह रूह में ज़ात ऐन होकर जारी है, गैर नहीं है। कुरान पाक में इरशाद होता है, अलम तर इला रब्बी का कैफा मदजिल्ली। ए महबूब, तूने नहीं देखा हमने अपने साए को कैसा लंबा किया है। साए का लंबा होना क्या है? ये रूह का पैदा होना है। ज़ात का जिल रूह है, जैसे हवा का जिल पानी है। फिर इरशाद हुआ, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। रूह ज़मीनों और आसमानों में समाया हुआ है और रूह में ज़ात समाई हुई है। जैसे बर्फ में पानी और पानी में हवा समाई हुई है, जिस तरह कायनात से रूह दूर नहीं, इसी तरह रूह से ज़ाते बारी ताला दूर नहीं। कुरान पाक में है, नाहनु अक़रब अलैहि मिन हब्लिल वरीद। इसलिए फरमाया, अल्लाहु नूरु समावात वल अर्द। इसीलिए फरमाया अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। कैसे नूर है? हजूर का नूर होकर नूर है, क्योंकि रूह हजूर का मर्तबा है और ज़ाते बारी ताला रूह से कायनात में जारी व सारी है। जैसे
ताकचे में चिराग हो, ताकचे में चिमनी चढ़ी हुई हो और कंदील चमकदार सितारे की तरह है, और वो कंदील मुबारक तेले जैतून से जलाई गई हो, और ना इसका मशरक है ना मगरब है। मशकाते मोहम्मदिया में वो शमा रोशन हो गई, इसलिए फरमाया अलम नशरा ला का सदरा का, ए महबूब हमने तेरा सीना खोल दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज हैं और तमाम आलम दायरा है, तमाम कायनात इनसे फैज ले रही है। वो ताकचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक है, इस पर कंदील हजूर का दिल है, जैतून का तेल जिससे लैंप जलाया गया है धुआं नहीं देता, यानी इसमें कोई अजब नहीं। अलम नशरा ला का सदरा का, ए महबूब हमने तेरे सीने में शम्मा जलाकर फिर शरा कर दी। फिर फरमाया कि ये वो नूर नहीं जो सिर्फ मदीना पाक के लिए है, बल्कि वो मशरक मगरब की कैद के बगैर फैज पा रहा है। वो इस तरह रोशन है जिसको आग नहीं छुई, वो नफखे से जलाया गया है, यानी नूर अला नूर। फिर वो नूर पर नूर है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम नूर अला नूर है। साहिब शफा शरीफ ने फरमाया कि इससे मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर अल्लाह ताला जिसको चाहे इस नूर की तरफ हदायत दे। हमको इस नूर का रास्ता दिखाया। अब जिनको रास्ता नहीं दिखाया, जिनके लिए इकबाल ने फरमाया है, मुस्तफ़ा बरसां खवेश रा के दीन हमा ओस्त, अगर बाउन नर सईदी तमाम बुलह यस्त। अपने आप को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दे कि यही दीन कामल है। अगर तू हजूर का ताबेदार नहीं होगा तो तमाम गुमराही है। वो शम्मा मक्का मौज़मा और मदीना पाक में इसलिए रोशन हुई कि हम इसको देख सकें। अगर वो इस सूरत में रहता जिस सूरत में दना के मकाम में था तो कौन देखता, वहां तो जबरील भी ना जा सका। ज़ाते बारी ताला ने इस सूरत में सिर्फ हमारी दीद के लिए ही भेजा है, वरना ज़ाते बारी ताला का दीद का मकाम तो दना का मकाम है। यह हमारे देखने का मकाम है। आमना की गोद में आया, मा ज़ागल बसर वमा तगा। खुदा के देखने का मकाम हमारे लिए जमाल इतना ही है कि मदीने में फिरे और सब देखें। अबू लाहब ने भी देखा, अबू जहल ने भी देखा, सदीक ने भी देखा, अली ने भी देखा। गोया एहतमाम हुज्जत की है कि कोई इनकार ना कर सके कि नहीं देखा। हजूर की दीद का ये मकाम है कि जबरील ने कहा, जिसको खिसरू अपनी ज़बान में यूं फरमाते हैं, अफाक हा गर्दीदायुम महरे बुता दरजीदायुम बसियार खुबां दीदायुम, लेकिन तू चीज़ें देख रही। मैंने तमाम जहां छान मारा, हसीनों को देखा, यानी कुल अंबिया को देखा, बहुत से हसीनों को देखा, मगर तेरे जैसा कोई नहीं। जबरील असल में ये कह रहे हैं कि तमाम के मकामात को समझा, मगर तेरे मर्तबे को और मकाम को मैं नहीं समझा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबरील तेरी कितनी उम्र है? अर्ज की, अभी कायनात पैदा नहीं हुई थी, एक सितारा चमका करता था जो 70,000 बरस तुलू रहता और फिर 70,000 बरस छुपा रहता। मैंने इसे 70,000 बार देखा है, इतनी मेरी उम्र है। हुजूर ने फरमाया कि वो सितारा मैं ही तो था। तअज्जुब का मुकाम है, बरसों का तयन तो तब ही हो सकता है जब दिन रात हो, सूरज हो। वहां तो ना दिन थे ना रातें, न सूरज था न चांद। इस वक्त बरस कैसे होंगे? ये बरस सिर्फ हमारे समझाने के लिए कहा है, वरना जिक्र तो इस मुकाम का है जहां बरसों की कैद ही नहीं।
दिन घड़ी घंटे मिनट की कैद ही नहीं। मालूम हुआ जिक्र इस मकाम का है जहां कैदो जमा नहीं थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त भी मौजूद थे और इस मकाम का इल्म था। तभी तो जबरील को कहा कि मैं ही था। तो अज्जब की बात है कि अब भी कहते हैं कि हजूर को इल्म नहीं। वहां सितारे का क्या मतलब है? सितारा तो आसमान पर होता है और आसमान तो अभी पैदा ही ना हुआ था। मालूम हुआ कि सितारा भी हमें समझाने के लिए कहा, वरना खुदा जाने क्या माहियत थी। इस वक्त लम यलिद व लम यूलद थे। इस नूर की मिसाल आमना की गोद में आई। गोया आमना की गोद से लेकर दना तक हजूर के ही मकाम है। हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ ला रहे हैं, रूह के मकाम से आ रहे हैं। आमना की गोद में आए, कहाँ से आए? रूह के मकाम से। और एक ये कि इस मंजिल में जब रहे तो 63 बरस उम्र पाई। चाहिए तो ये था कि ये उम्र कैद जमानो मकान से पाक होती, मगर ज़ाते बारी ताला ने फरमाया कि तेरी मंजिल और भी है, आ तुझे दिखाएं। मिराज हुआ, फरमाया जिस मंजिल से तू गुजर रहा है ये और है और जहां से तू आया है वो और है। हुजूर ने फरमाया होगा कि मैं अपने गुलामों के साथ जाना चाहता हूँ, इसलिए 63 बरस उम्र पाई और हमारे साथ रहे। जब हम कब्र में गए तो फिर हमारे साथ आए। कब्र में दीदार पाक होगा। एक मुकाम वो है जबरील भी साथ ना दे सका और एक मंजर ये कि गुनहगारों की कब्र में तशरीफ ला रहे हैं। कब्र में सवाल होता है, मन रब्बू का, मन तीनों का, और एक जो तीसरा सवाल जो लाजमी भी कहते हैं वो होगा, मा तकूलु फी हक्की हाज ही रजत। अगर पहले दोनों जवाब दुरुस्त दे दे और तीसरे सवाल का जवाब ना दे सके, यानी हजूर को ना पहचाने, तो फिर क्या होगा? फिर क्या ठिकाना? खुदा कहेगा, मैंने तो नमूना भेजा था, क्या तुम इस नमूने के मुताबिक चले हो? हदीस शरीफ में आया है कि क़यामत के दिन जबरील नहायत अदब से हजूर को पुकारेंगे, यानी सबसे पहले हजूर को उठाया जाएगा। हजूर कब्र से बाहर तशरीफ ले आएंगे। हजूर फौरन सवाल करेंगे कि मेरी उम्मत तो कहीं नजर नहीं आती, कहीं दोज़ख के किनारे छोड़कर तो नहीं आए? तो जबरील अर्ज करेंगे, हजूर अभी आपको ही उठाया गया है और कोई नहीं उठा। फिर तमाम उठाए जाएंगे और आखिर पनाह के लिए लोग तड़पेंगे। तो कौन पनाह देगा? कोई पनाह न दे सकेगा, हुजूर ही पनाह देंगे। और जो यहाँ मदद नहीं मांगते वो इस वक्त क्या करेंगे? मदद मांगेंगे या नहीं? अगर हुजूर की पनाह में नहीं जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। हुजूर नहीं फरमाएंगे कि तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, मैं एक बंदा हूँ, बल्कि हुजूर सिफारिश फरमाएंगे और ज़ाते बारी ताला अपने वादों के मुताबिक हुजूर को राजी करेंगे। चुनाचे इरशाद हुआ कि हुजूर दोज़ख के किनारे खड़े हो जाएंगे और एक एक उम्मती को पकड़कर दोज़ख से बाहर निकालेंगे। और हुजूर फरमाते हैं, जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में रहेगा मुझे आराम नहीं होगा। इस मकाम पर तुम्हारी तवज्जो एक लतीफ मकाम की तरफ दिलाता हूँ। शिरक की तारीफ हर वक्त एक ही रही है और एक ही रहेगी। एक बात अगर इस वक्त शिरक है तो इस वक्त भी शिरक है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना शिरक है तो उस वक्त भी शिरक होगा। हजूर के बगैर कोई मदद ना कर सकेगा। तमाम अंबिया भी हजूर की तरफ रजू करेंगे। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त वो क्या करेंगे? क्या शिरक करेंगे? शिरक तो इनके लिए होगा। हम तो शिरक ख्याल ही नहीं करते। हम तो इस वक्त भी शफा चाहेंगे। मौला ताला इरशाद फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम इज ज़ालमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरलहुम मुर्रसूलुल्लाह
लवजदुल्लाह तवाबन रहीम। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हजूर हाजिर हूँ, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल इनकी शफाअत फरमा दें तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। हम तो अपने वकील खुदाबंद ताला के कहने से हजूर की बारगाह में तौबा के लिए हाजिर हो गए हैं और होते रहेंगे। वो क्या करेंगे जिनका वकील मौलवी है और इस अमल को शिर्क कहते हैं। ज़ाते बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, नहनु अकरब अलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिन पर ये राज खुला है वो वली हुए, इसलिए इनसे मदद मांगना खुदा से ही मदद मांगना है। खुदा और हजूर की गवाही में निकाह नहीं हो सकता। निकाह के लिए ऐसे गवाहों की जरूरत है जो अदालत में हाजिर होकर बयान दे सके। वैसे तो खुदा भी हाजिर नाजर है मगर वो गवाह नहीं बन सकता। बात दरअसल ये है कि हुजूर की एक मंजिल तो ये है कि मकान से उठे और ला मकान से आगे चले गए और वहाँ कोई दूसरा नहीं जा सकता, और एक मंजिल ये है कि हुजूर हमारे साथ साथ जा रहे हैं। इस मर्तबे को तो देखते हैं कि हुजूर हमारे साथ हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, और इस मंजिल को तो देखते ही नहीं जो बराह रास्त है, और कुरान पाक में साफ साफ इस मंजिल का जिक्र आया है। मेरे दोस्तों, बाकिया इंशाल्लाह अगले हिस्से में बयान किया जाएगा। अल्लाह सबको इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए और इस सबक को समझने की हिम्मत अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।